Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज जीके करंट अफेयर्स से. So if you have not watched my previous video with regard to the daily news analysis of 3rd November, then please do watch that and then come and watch this video. Let's start with the first question. The first question is, कौन सी टीम win हुई the ICC Women's ODI World Cup, and this was won by India. So yes, this is the first time we ever won this particular tournament. तो इसीलिए आपको याद रखना है. Answer to the question is D. Question number 2. Whom did India defeat in the final of the 2025 Women's ODI World Cup? तो इसका आंसर है, हमने डिफीट किया था साउथ अफ्रीका को. साउथ अफ्रीका by 52 runs हमने इनको हराया था. Therefore, the answer to the question is the finals happened between India and South Africa, during which India won the trophy. Where was the finals of the ICC Women's World Cup? या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि होस्ट कंट्री कौन है. Okay, who is the host country? Again, the answer would be India itself. So India hosted the Women's ODI World Cup and the final that we see happened in Navi Mumbai, DY Patil. So answer iska hai the B. Let's proceed to question number 4. Who was awarded the player of the tournament in the 2025 Women's ODI? The answer to the question is Deepti Sharma. She has won the player of the tournament. और हम देखते हैं Shefali Verma was called as the player of the match. Finals में जो player of the match था, that was Shefali Sharma, and player of the tournament is Deepti Sharma. Let's proceed to question number 5. Which country has won most times the Women's World Cup cricket tournament? और इसका आंसर है Australia, who has won this particular tournament for 7 times. Okay, पहली बार ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था 1973 में. 2 years हम देखते हैं, 2 years बाद स्टार्ट हुआ था 1975 में द मेंस वर्ल्ड कप. तो 1973 से स्टार्ट हुआ था पहली बार और अभी तक हम देखते हैं कि 7 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया ही जीत चुकी है. ये इंडिया का पहला विन है. Proceeding to question number 6. The GSAT-7R satellite is primarily meant to serve which wing of the Indian Armed Forces? तो हम ये इस्तेमाल करेंगे इंडियन नेवी अपने कम्युनिकेशंस के लिए. द GSAT-7R जो हाल ही यानी कल के दिन लॉन्च हुई थी. सो आंसर इसका है सी. Proceeding to question number 7. लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है जिसने ये GSAT-7R को लिफ्ट किया है? The answer to the question is LVM-3M5. Okay, so LVM-3M5 answer is launch vehicle Mark 3. यहाँ पे ऑप्शन है सी. क्वेश्चन नंबर 8. कौन से ऑर्बिट में इसको लॉन्च करेंगे हम? इसको हम लॉन्च करेंगे इन द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम द श्रीहरिकोटा दैट इज स्पेस स्टेशन, जो है सतीश धवन स्पेस स्टेशन, जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में. ओके, और इसका जो सैटेलाइट एज वी सॉ LVM-3 जो इस्तेमाल भी होगा गगनयान के जो सैटेलाइट लॉन्च जो हम यूज करेंगे तभी भी हम LVM-3 ही इस्तेमाल करेंगे. सो आंसर टू द क्वेश्चन इज कौन से ऑर्बिट में हमने इसको प्लेस किया? द आंसर इज जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. Okay, the next question is कहां से लॉन्च किया गया था? As we saw, it was in the सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में by the LVM-3. Question number 10. ICMR ने recently expression of intent शो किया है to develop monoclonal antibodies. ये कौन से वायरस के लिए? The answer is नीपा वायरस. So answer is C. Let's proceed to the next question. नीपा वायरस पहली बार कहां पे आया था? तो आइडेंटिफाई हुआ है ये मलेशिया में. ठीक है, मलेशिया में. Therefore answer to the question is B in 1998. Question number 12. नीपा वायरस प्राइमरीली ट्रांसमिट होता है ह्यूमन से, कौन से एनिमल से? सो द नेचुरल होस्ट कौन है? बेसिकली फ्रूट बैट इज द आंसर. पिग्स आल्सो हैव दिस बट फ्रूट बैट इज अ नेचुरल होस्ट, इसीलिए हम आंसर इसको सी मार्क करेंगे. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुआ था TSC, जो अलग अलग सर्विसेज का था इन राजस्थान, गुजरात एंड अरेबियन सी, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल. ओके, ये 12 दिन का एक एक्सरसाइज होगा जो स्टार्ट होगा आज से. तो इसका आंसर है ए. Proceeding to question number 14. Which service is leading the Tri-Services Exercise Trishul 2025? हम देखते हैं कि इसको जो लीड करेगा
It will be done by the Indian Navy coordinating with the Western Command. So answer इसका है B. Let's proceed to the next question. The Romari Donduwa Wetland Complex ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है जो प्रपोज किया जा रहा है एज अ रामसार साइट? तो इसका आंसर है आसाम. अभी हम देखते हैं कितने साइट्स रामसार नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें. How many sites does the northeast have from Ramsar? The answer is only 2. एक है मणिपुर में, ओके, दैट इज द लोकटक लेक, और दूसरा वाला है आसाम में विच इज द दीपोर बिल. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स पाए भी जाते हैं. Proceeding to question number 16, the Romari Dhondua Wetland Complex ये कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है? The answer to the question is Laukhova Wildlife Sanctuary. Laukhova Wildlife Sanctuary. Answer to the question is C. Question number 17, which two wetlands are currently recognized as Ramsar sites in Northeast? तो यहाँ पे हमने देखा है ऑलरेडी. आंसर दीपोर बिल जो आसाम में है, लोकटक लेक जो मणिपुर में है. तो इसका आंसर है A. क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा मेन केमिकल इस्तेमाल होता है क्लाउड सीडिंग में? क्लाउड सीडिंग क्या होता है? Which is mainly to produce artificial rains, not rains, artificial rains. तो ये रेन्स को बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है क्लाउड सीडिंग, जहां पे ये यूज करते हैं मेनली सिल्वर आयोडाइड या इवन ड्राई आइस का इस्तेमाल होता है. तो आंसर टू द क्वेश्चन इज बी. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो लॉज अमेंड करने वाले हैं इन रिगार्ड टू द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर? हमने देखा है दैट इज द सिविल लाइबिलिटीज न्यूक्लियर Act of 2010, Nuclear Development Act of 2010, as well as the Atomic Energy Act of 1962, जो क्लिंडा वाला एक्ट है, ताकि हम देखते हैं सप्लायर्स का जो लाइबिलिटी है ये इस पे कुछ कैप लगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए, एज वेल एज हम देखें एटॉमिक एनर्जी एक्ट जहाँ पे प्राइवेट बॉडीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करें इन द न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया. तो ये दो लॉज उसी के बारे में जो प्रोबेबली हम देखेंगे अमेंड होगा इन द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. And finally, the last question of today, what is the planned capacity of the Bharat Small Modular Reactors? देखो मैंने आपको ये बताया था BSMR अगर पूछा तो याद रखना कि 200 मेगावाट इलेक्ट्रिक. अगर सिर्फ BSR होता तो आप लिखते 220 मेगावाट इलेक्ट्रिक. अगर सिर्फ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता तो आप आंसर क्या होता? 55 मेगावाट इलेक्ट्रिक. ठीक है, तो भी आंसर क्या है? BSMR. आंसर होना चाहिए 200. तो यहाँ पे आंसर हमारा है ऑप्शन बी, 200 megawatt electric. So that is all with regard to our today's GK, that's daily news analysis, as well as with regard to the 20 GK questions. I hope you have got all of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.